A very good morning to you all students. As we have started our geography second chapter, the physical features of India. In last two classes we have completed till the northern plains of India, and our today's topic is the Peninsula Plateau. Beta, let me show you which part is called as Peninsula Plateau. So see beta, this portion to this complete portion is called as Peninsular Plateau. Okay beta, and the Peninsula Plateau is also divided into two parts. The central part is called as Central Highlands, okay, and this portion is called as Deccan Plateau. So this is all the Peninsular Plateau. Let us start. The Peninsula Plateau is a tableland composed of the old crystalline, igneous and metamorphic rocks. So about these rocks we have already studied in class 8th that different kinds of rocks are there, and Peninsula Plateau is made of all these three varieties of rocks are available in Peninsula Plateau. And like Himalayas are formed because of drifting of Gondwana land. Okay, similarly peninsular plateaus are also formed because of breaking and drifting of Gondwana land, so it is called as oldest landmass. This is firstly formed region of India, and Himalayas and northern plains are called as modern or young areas. We found broad and shallow valleys and rounded hills in these peninsular plateaus. So what are the features of peninsular plateaus? That we found valleys as well as hills, rounded hills in these areas. This plateaus consist of two parts. This I have already told you about before, that Central Highland and Deccan Plateaus. There are two parts of Peninsula Plateau. The part of Peninsula Plateau lying to the north of the Narmada River, covering a major areas of the Malwa Plateau, is known as Central Highland. ठीक है, let me show you this see Malwa Plateau. ठीक है, Central Highland के नॉर्थ में जो ये रीजन है that is called as Malwa Plateau. ठीक है, नर्मदा रिवर के नॉर्थ में. ठीक है, द विंध्यान रज इज बाउंडेड बाय द सेंट्रल हाईलैंड ऑन द साउथ एंड अरावली ऑन द नॉर्थ वेस्ट. और सेंट्रल हाईलैंड के जो है ये सेंट्रल हाईलैंड है, इसके साउथ में तो देखने को मिलता है विंध्यान रेंज, और नॉर्थ और वेस्ट में देखने को मिलता है अरावली रेंज. ठीक है, ये सारे सेंट्रल हाईलैंड का पार्ट है. ये जो देख रहे हो ना आप, लाइट शेडेड एरिया, दिस. The Vindhyan range is bounded by the Central Highland on the south and Aravalli on the northwest. The further westward extension gradually merges with the sandy and rocky deserts of Rajasthan. और अरावली रेंज से और वेस्ट की तरफ जाएंगे तो ग्रेट डेजर्ट्स ऑफ राजस्थान. ओके, दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू और सेंट्रल हाईलैंड. The flow of rivers draining this region, namely the Chambal, the Sindh, Betwa and Ken, is from southwest to नॉर्थ वेस्ट, दस इंडिकेटिंग द स्लोप. और ये सारी रिवर्स यहाँ पे बहती है सेंट्रल हाईलैंड में. ये देख रहे हो आप सारी रिवर्स बेटा, चंबल, बेतवा, दिख रहा है ना. ये सारी जो रिवर्स है, कुछ साउथ से आ रही है, कुछ नॉर्थ से फ्लो कर रही है. ये सारी रिवर्स जो है सेंट्रल हाईलैंड्स की है. द सेंट्रल हाईलैंड आर वाइडर इन द वेस्ट बट नैरोअर इन द ईस्ट. अगर वेस्ट से देखें तो ये ज़्यादा चौड़ा है, और ईस्ट में देखा तो ये इनकी जो चौड़ाई है वो कम हो जाती है सेंट्रल हाईलैंड की. द ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ दिस प्लेट्यू आर लोकली नोन एज द बुंदेलखंड एंड बघेलखंड. और जो ईस्टर्न एक्सटेंशन है इसका प्लेट्यू का, इसको बुंदेलखंड और बघेलखंड के नाम से भी जाना जाता है. इस तरफ देखो, बुंदेलखंड और बघेलखंड. अंडरस्टैंड बेटा, ईस्टवर्ड एक्सटेंशन इसको क्या बोलते हैं अपन, बुंदेलखंड और बघेलखंड के नाम से भी ये जाना जाता है. द छोटा नागपुर प्लेट्यू मार्क्स द फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ड्रेन्ड बाय द दामोदर रिवर. और सेंट्रल हाईलैंड के और ज़्यादा अपन ईस्ट में जाएंगे तो अपन को क्या देखने को मिलता है, छोटा नागपुर प्लेट्यू. ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, छोटा नागपुर प्लेट्यूज. अभी अपन ने पढ़ा सेंट्रल हाईलैंड पेनिनसुलर प्लेट्यूज के ऊपर का पोर्शन अपन ने सेंट्रल हाईलैंड पढ़ा. अब पेनिनसुलर प्लेट्यूज के नीचे का जो पोर्शन है ये
अब डेक्कन प्लेट्यूज के बारे में हम पढ़ेंगे, इसके फीचर्स पढ़ेंगे। द डेक्कन प्लेट्यू इज ए ट्राइंगुलर लैंड मास। डेक्कन प्लेट्यू ट्राइंगुलर, पेनिनसुला प्लेट्यू ऐसे ना, तो ये ट्राइंगुलर लैंड मास है, ऊपर से ऐसे चौड़ा है और नीचे से इस तरह से ट्राइंगुलर शेप का है। दैट लाइज टू द साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा। रिवर नर्मदा के नॉर्थ में तो है दिस सेंट्रल हाईलैंड, ठीक है। रिवर नर्मदा के नॉर्थ में अपन को क्या दिख रही है, नर्मदा रिवर है, इसके नॉर्थ में है सेंट्रल हाईलैंड और साउथ में है डेक्कन प्लेट्यू। आ रही बात समझ में? मैप से ही समझाऊंगी बेटा, थोड़ा सा ये हो सकता है वाइब्रेट हो रहा हो, बट मैप से समझाऊंगी तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। द सतपुरा रेंज फ्लैंक्स इट्स ब्रॉड बेस इन द नॉर्थ वाइल द महादेव एंड कैमूर hills and the Michael hills form its eastward extension। और इसके नॉर्थ में तो है सतपुरा रेंज और साउथ में ये सारे रेंजेस, हिल्स के नाम है कि कौन कौन सी हिल्स जो है हमको डेक्कन प्लेट्यूज में देखने को मिलता है। तो ये देखो महादेव हिल्स डेक्कन प्लेट्यू के नॉर्थ में, और नीचे बाकी सारी हिल्स आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। द डेक्कन लोकेट दिस हिल्स, अभी आपको खुद करना है, लोकेट दिस हिल्स एंड रेंजेस इन द फिजिकल मैप ऑफ इंडिया। द डेक्कन प्लेट्यू इज हायर इन द वेस्ट एंड स्लोप्स जेंटली ईस्टवर्ड। वेस्ट में ज़्यादा जो है, यहाँ की जो हिल्स है ना वेस्ट की, वो ज़्यादा हाई है, और ईस्ट में जो है हिल्स थोड़े यूँ स्लोप हो जाती है। तो ये एरिया ज़्यादा विड्थ इसकी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दिस एरिया इज़ नैरोअर। यहाँ की हिल्स जो है वो कम चौड़ी चौड़ी दिखाई देती है, ठीक है, ईस्टवर्ड एक्सटेंशन की। An extension of the plateau is also visible in the northeast, locally known as the Meghalaya, Karbi, Anglong Plateau and North Kachar Hills. It is separated by fault from the Chota Nagpur Plateau. Three prominent hills range from the west to east are, जो तीन मेजर जो मेन हिल्स रेंज है हिल्स की वेस्ट से लेकर ईस्ट में, वो है गराव, खासी, ये सारी हिल्स आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे देखना, मैप में ढूंढना बेटा, नहीं मिले तो फिर पूछ लेना। गराव हिल्स, काशी हिल्स और एक और हिल है दैट इज जैंतिया हिल्स। द वेस्टर्न घाट एंड द ईस्टर्न घाट मार्क द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न एजेस ऑफ द Deccan Plateaus respectively. Western Ghat lies parallel to the western coast. They are continuous and can be crossed through passes only. Locate the Thal, Bhor and Pal Ghats in the physical map of India. अब इसमें ये क्या कह रहा है कि ये रही, ये वेस्टर्न घाट्स है, ये ईस्टर्न घाट्स है। वेस्टर्न घाट्स जो है वो बेटा कंटिन्यूस है, ठीक है, जबकि ईस्टर्न घाट्स जो है उनको रिवर्स जो है बाइफरकेट कर रही है। वेस्टर्न घाट कंटिन्यूस है और मतलब एक साथ जो घाटियाँ बनी हुई है, टूटती नहीं है बीच में, और ईस्टर्न घाट्स में जो है बीच बीच में नदियाँ जो है घाटियों को ख़त्म कर देती है, तोड़ देती है, बाइफरकेट कर देती है। द वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट मार्क द वेस्टर्न, ये अपन ने पढ़ लिया। द वेस्टर्न घाट्स आर हायर देन द ईस्टर्न घाट्स। जो वेस्टर्न घाट्स हैं, जो वेस्टर्न घाट्स की हिल्स हैं, घाट्स हैं, वो ज़्यादा हाई है एज़ कम्पेयर टू ईस्टर्न एरियाज़ में घाट जो है छोटे छोटे से ही हैं। अब हाइट देखो, देयर एवरेज एलिवेशन मतलब हाइट इज़ 900 to 1600 मीटर एज अगेंस्ट 600 ऑफ द, जब वेस्टर्न घाट्स में है वो हिल्स कैसी हैं, 900 से 1600 मीटर तक हाई मिल जाएगी, जबकि ईस्टर्न घाट्स में सिर्फ 600 मीटर हाइट है घाट सेक्शन की। द ईस्टर्न घाट स्ट्रेच फ्रॉम द महानदी वैली टू द नीलगिरी इन द साउथ, irregular and dissect by the river draining into the Bay of Bengal। ये मैंने बताया ईस्टर्न घाट्स क्या है, इरेगुलर है, बीच बीच में से नदियाँ बहती है ना, तो इनको तोड़ती है और वो जाके कहाँ मिलती है, बे ऑफ बंगाल में नदियाँ मिलती है। तो ये कंटिन्यूस नहीं है, घाट सेक्शन में बीच बीच में जो है हमको गैप देखने को मिलता है, कंटिन्यूस घाट नहीं है। The Western Ghat cause orographic rain by facing the rain-bearing moist winds to rise along the western slope of the Ghat। अब इंडिया में रेन कहाँ से आती है, यहाँ से साउथ वेस्ट मानसून आता है। इंडिया के मानसून को क्या बोलते हैं, साउथ से शुरू होती है हवाएं और वेस्ट की तरफ डाइवर्ट हो जाती है।
तो ऑब्वियसली घाट सेक्शन से जब ये मतलब रेन बियरिंग, ये जो क्लाइमेट चैप्टर अपन पढ़ेंगे ना बेटा, उसमें आपको और अच्छे से समझ में आएगा ये सारा चीज़ें, विंडवर्ड और एक्सवर्ड। जब बारिश कहीं से शुरू होती है, बारिश वाली हवाएं ऐसी चालू होती है जो मॉइस्चर लेकर आगे की तरफ बढ़ती है, तो जो सामने वाले फेस जिससे टकराती है माउंटेन से, उसको बोलते हैं विंडवर्ड साइड, और जो माउंटेन के पीछे का हिस्सा है उसको लीवर्ड साइड। माउंटेन से टकराने के कारण क्या होती है, सारी बारिश जो है सामने वाली तरफ मैक्सिमम रेनफॉल हो जाती है, वहाँ से हवाएं टकराती है ना हिल्स से, घाट से या माउंटेन से, तो ज़्यादातर बारिश जो है आगे की तरफ हो जाती है। पीछे की तरफ जब तक हवाएं, हाँ ये देखो ये आगे की तरफ हो जाती है, जब तक पीछे की तरफ हवाएं पहुंचती है ना, तब तक जो है उनका मॉइस्चर वहीं ख़त्म हो चुका है और बहुत ही कम रेनफॉल होती है। तो आगे की साइड को बोलते हैं विंडवर्ड साइड जहाँ बारिश होती है, और लीवर्ड साइड जहाँ बारिश नहीं होती है या कम होती है। तो जो वेस्टर्न घाट्स है वो किस डायरेक्शन में आते हैं, विंडवर्ड साइड में। सारी मैक्सिमम रेनफॉल कहाँ आ जाती है, यहाँ पे। यहाँ ईस्टर्न साइड में पहुँचते पहुँचते रेनफॉल कम हो जाती है। ईस्टर्न साइड में बारिश कब होती है, जब रीट्रीटिंग मानसून होता है, ठीक है। यहाँ पे राइजिंग मानसून, ठीक है, और यहाँ पे रीट्रीटिंग, जब मानसून शुरुआत होती है तब यहाँ पे बारिश होती है, और जब मानसून वापस जा रहा होता है ना, तो जाते जाते यहाँ पे बारिश करके जाता है। तो ईस्टर्न घाट्स में रीट्रीटिंग मानसून आता है, रीट्रीटिंग रेनफॉल आती है। जो रीट्रीटिंग और जो है ये चढ़ती और उतरती बारिश, ये जो आप समझोगे ना बेटा, ये क्लाइमेट चैप्टर में बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। लेट अस मूव फॉरवर्ड। तो वेस्टर्न घाट्स क्या है, विंडवर्ड साइड है, यहाँ बारिश होती है, और ईस्टर्न घाट्स लीवर्ड साइड में है, ठीक है। यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स में जो हिल्स है वो ज़्यादा हाई है एज़ कम्पेयर टू ईस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स का घाट सेक्शन कंटिन्यूस है, बीच में कटाव नहीं है, जबकि ईस्टर्न साइड के घाट सेक्शन में बीच में से नदियाँ बहकर आती हैं जो उसको काटती है, उसकी जो रेगुलरिटी अपन कह सकते हैं उसको ख़त्म करती है। देन द हाइट ऑफ द वेस्टर्न घाट प्रोग्रेसिवली इंक्रीजिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। और वेस्टर्न घाट्स की भी हाइट जो है नॉर्थ से जब साउथ में आते हैं तो साउथ में ज़्यादा हाई हिल्स है एज कम्पेयर टू नॉर्थ। द हाईएस्ट पीक इंक्लूड द अनाई मूदी। जो हाईएस्ट पीक है वेस्टर्न घाट्स की वो है अनाई मूदी। मैंने क्या बोला, यहाँ पे कम हाइट की हिल्स है एज कम्पेयर टू दिस, यहाँ पे ज़्यादा हाई हिल्स मिलेगी वेस्टर्न घाट्स में, ठीक है। तो हाईएस्ट पीक है अनाई मूदी, इसकी हाइट है 2695 किलोमीटर। अंडरस्टैंड बेटा, मीटर सॉरी, डोडा बेटा, फिर उसके बाद सेकंड है डोडा बेटा 2637 मीटर, फिर है महेंद्रगिरी 1501 मीटर इज़ द हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट। तो ये देखो यहाँ पे मिल जाएगा आपको, डोडा बेटा मिलना चाहिए, ये रही महेंद्रगिरी, तो ये रहा, ठीक है। डोडा बेटा आप ढूंढना, ये रहा, ये अनाईबूदी वेस्टर्न घाट्स का, ईस्टर्न घाट्स का ये रहा महेंद्रगिरी, ठीक है। ये हाईएस्ट हिल्स हैं इस एरिया के। देन है शेवरॉय हिल्स एंड द जावेदी हिल्स आर लोकेटेड टू द साउथ ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट्स। लोकेट द फेमस हिल स्टेशंस ऑफ उदागमंडलम पॉपुलरली नोन एज ऊटी एंड कोडाई कैनाल। ये आप अपने आप लोकेट करोगे। वन ऑफ द डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज द ब्लैक सॉइल। पेनिनसुलर प्लेट्यू का एक और स्पेशल फीचर ये है कि यहाँ की जो मिट्टी है वो ब्लैक सॉइल है, और इसको डेकन ट्रैप भी बोलते हैं। ये कैसे फॉर्म हुई है, वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ की वजह से, वॉल्केनोज की वजह से जो इग्निशियस रॉक बनती है ना, उनसे ये फॉर्म होती है ब्लैक सॉइल। एक्चुअली दीज रॉक्स हैव डिन्यूड ओवर टाइम एंड आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल। द अरावली हिल्स लाइज टू द वेस्टर्न एंड द नॉर्थ वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द Peninsular plateaus are highly eroded hills and are found as broken hills. They extend from Gujarat to Delhi in a southwest northeast direction. अब अपना नेक्स्ट हेडिंग है द इंडियन डेजर्ट। द इंडियन डेजर्ट लाइज टूवर्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द अरावली हिल्स। अरावली हिल्स के वेस्ट में क्या है, ये अरावली हिल्स, अरावली रेंजेस के वेस्ट में है इंडियन डेजर्ट्स। अंडरस्टैंड, राजस्थान का एरिया है ये बेटा। ये बार बार मैं टर्न करके आपको इसलिए समझा रही हूँ ताकि मैप से समझा सकूँ। इट इज़ एन अनडायलेटिक सैंडिक प्लेन कवर्ड विद सैंड ड्यून्स। और इंडियन डेजर्ट्स में क्या मिलेंगे, सैंड ड्यून्स, मिट्टी के, आप क्या बोलते हो, ये ड्यून्स को जो भी आप बोलते हो, सैंड ड्यून्स देखने को मिलता है। दिस रीजन रिसीव्स वेरी, और इस डेजर्ट एरियाज में ऑब्वियसली जो रेनफॉल है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, ओनली 150 मिलीमीटर पर ईयर।
इट हैज़ एरिड क्लाइमेट, एरिड मतलब सूखा सूखा क्लाइमेट है, विद लो वेजिटेशन कवर, दूर दूर तक वेजिटेशन देखने को नहीं मिलती है। स्ट्रीम्स डिस अपीयर्स ड्यूरिंग द रेन, सिर्फ बारिश के टाइम में थोड़ी बहुत पानी की जो स्ट्रीम्स देखने को मिलती है। सून आफ्टर दिस ए डिसअपियर इनटू द सैंड, और जैसे ही बारिश खत्म हो जाती है मिट्टी में गायब हो जाती है स्ट्रीम। एज डू नॉट हैव इनफ वाटर टू रीच द सी, क्योंकि इसमें स्ट्रीम्स में इतना पानी होता ही नहीं है कि वो बह कर नदियों में मिल सके। लूनी इज द वन लार्ज रिवर इन दिस रीजन, लूनी नदी है ना बेटा। भरचांस, भरचांस बोलते हैं क्रिसेंट शेप ड्यून्स को, अपन मिट्टी के धौरे बोलते हैं ना बेटा, ड्यून्स। भरचांस कवर्स लार्जर एरिया बट लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स बिकम मोर प्रोमिनेंट नियर द, और ज़्यादा जो बड़े बड़े जो मिट्टी के धौरे जो ड्यून्स देखने को वो इंडो पाकिस्तान बाउंड्री पे देखने को मिलते हैं। अगर अपन जैसलमेर घूमने जाते हैं ना बेटा, वहाँ पे अपने को मिलते हैं ना, ये स्पेशलिटी है वहाँ की, ये भरचांस क्रिसेंट शेप ड्यून्स। अब आगे बढ़ते हैं द कोस्टल प्लेन्स। द पेनिनसुलर प्लेटू इज फ्लैंक्ड बाय स्ट्रेच ऑफ नैरो कोस्टल स्ट्रिप्स रनिंग अलोंग द अरेबियन सी ऑन द वेस्ट एंड बे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्ट। देखो कोस्टल प्लेन्स बताती हूँ, ये जो एरिया है ना, ये अरेबियन सी में ये वाला एरिया, दिस इज कोस्टल प्लेन्स वेस्टर्न घाट्स की इस तरफ, और ये बे ऑफ बंगाल में ये रहा। यहाँ के कोस्ट है मलबार कोस्ट, यहाँ पे है कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है। The western coast sandwiched between the Western Ghats and the Arabian Sea is a narrow plain. It consists of three sections. The northern part of the coast is called the Konkan. मुंबई से गोवा के बीच का जो पार्ट है ना, ये मुंबई से गोवा के बीच का जो पार्ट है इसको बोलते हैं कोंकण, ठीक है। फिर अपन जाते हैं सेंट्रल वाला एरिया को बोलते हैं कन्नाड़, और साउथवर्ड एक्सटेंशन को बोलते हैं मलबार। ये कोंकण, ये कन्नड़, और ये साउथवर्ड एक्सटेंशन इसको बोलते हैं मलबार कोस्ट। तो इट इज़ लाइक अ सैंडविच बिटवीन वेस्टर्न घाट्स एंड दिस रिवर, अरेबियन सी के बीच में ये जो कोस्टल एरिया है ना, ये सैंडविच की तरह दबा हुआ दिखता है। द रिवर्स कमिंग फ्रॉम नॉर्थवर्ड माउंटेन्स आर इन्वॉल्व इन डिपोजिशन वर्क इन द लोअर कोस्ट ड्यू टू सॉरी बेटा, the plains along the Bay of Bengal are wide and level. In the northern part it is referred to as the northern circle, while the southern part it is known as Coromandel Coast. और ईस्टर्न पार्ट की अगर अपन बात करें कोस्टल एरियाज़ का, तो नॉर्दर्न पार्ट जो है नॉर्दर्न सर्कल, और ये सर्दर्न पार्ट है कोरोमंडल कोस्ट। तो ईस्टर्न साइड के ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की बात कर रहे हैं, जो रिवर्स फ्लो करके आती है अपने साथ सेडिमेंट्स, उनकी वजह से कोस्टल प्लेन्स बने। जैसे नॉर्दर्न प्लेन्स बने थे वैसे ही कोस्टल प्लेन्स बने हैं। लार्ज रिवर्स सच एज महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी आर फॉर्म्ड एक्सटेंसिव डेल्टा ऑन दिस कोस्ट। लेक चिलिका इज एन इम्पॉर्टेंट फीचर अलॉन्ग द ईस्टर्न कोस्ट। डेल्टा बेटा, जब रिवर जहाँ पे नदी में मिलने से पहले क्या है, समुद्र, यहाँ पे ये देखो ये डेल्टास बना रहा है, कोई नदी बहकर आ रही है गोदावरी, गोदावरी मिलने जा रही है बे ऑफ बंगाल में, बे ऑफ बंगाल में मिलने से पहले गोदावरी के क्या होते हैं, अलग अलग टुकड़े हो जाते हैं, अलग अलग डायरेक्शन से ये इसमें समुद्र में मिलती है। तो ये डेल्टा मतलब ट्रायंगुलर शेप लाइक जो है फिगर बनाती है, दिस इज कॉल्ड एज डेल्टा। अंडरस्टैंड बेटा। अब अपन पढ़ रहे हैं आइलैंड्स। You have already seen that India has a vast mainland. Besides this, the country has also two groups of island है, लक्षद्वीप आइलैंड और अंडमान निकोबार आइलैंड। यहाँ देखो मैप में, ये लक्षद्वीप आइलैंड अरेबियन सी का, अंडमान निकोबार आइलैंड बे ऑफ बंगाल सी पे। इन दोनों के बारे में, आइलैंड ग्रुप्स के बारे में अब लास्ट अपन पढ़ेंगे, ठीक है। लोकेट द लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप lying close to the Malabar coast of Kerala. This group of island is composed of, अब ये जो लक्षद्वीप आइलैंड है ना, ये तीन छोटे छोटे आइलैंड से मिलकर बना हुआ है। लाका डाइव, मिनिकॉय एंड एमिन डाइव, ये तीन आइलैंड से पहले इन सब से मिलकर जो एक बड़ा आइलैंड बना, दैट इज लक्षद्वीप आइलैंड। कब बना? इन 1973, नेम्ड एज लक्षद्वीप आइलैंड। इट कवर स्मॉल एरिया। जो लक्षद्वीप आइलैंड कितने एरिया पे बना हुआ है? 32 स्क्वायर किलोमीटर एरिया पे। कारावती आइलैंड इज द एडमिनिस्ट्रेटिव, लक्षद्वीप आइलैंड का जो मेन आइलैंड है वो है कारावती आइलैंड। दिस आइलैंड ग्रुप हैज़ ग्रेट डाइवर्सिटी। अब इस लक्षद्वीप आइलैंड पे बहुत अलग अलग तरीके के फ्लोरा और फोना, मतलब अलग अलग तरह के प्लांट्स और एनिमल लाइफ देखने को मिलती है। जो पिटी आइलैंड है लक्षद्वीप आइलैंड का, वहाँ पे लोग कम रहते हैं और वो एक बर्ड सेंचुरी है। नाउ यू कैन सी द एलोंगेटेड चेन ऑफ आइलैंड लोकेटेड इन द
लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल एक्सटेंडेड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अब अपन अंडमान निकोबार के बारे में बात करते हैं। दे आर बिगर इन साइज। लक्षद्वीप से अंडमान निकोबार ज़्यादा जो है बड़े हैं साइज में, and are numerous and scattered. The entire group of island is divided into two broad categories. अंडमान है नॉर्थ में और निकोबार है साउथ में। इट इज़ बिलीव दैट दीज आइलैंड्स आर एन एलिवेटेड पोर्शन ऑफ सबमराइन माउंटेन। ऐसा माना जाता है कि माउंटेन्स से बनकर ही जो ये आइलैंड बने हैं। दीज आइलैंड ग्रुप्स आर ऑफ ग्रेट स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। इनकी अपनी ही विशेषता है देश के लिए। देयर इज़ ए ग्रेट डाइवर्सिटी। जैसे उधर भी बहुत सारे अलग अलग तरीके के फ्लोरा फोना मिलते हैं ना, तो लक्षद्वीप इधर अंडमान निकोबार में भी अलग अलग टाइप्स ऑफ फ्लोरा फोना हमको देखने को मिलते हैं। दीज आइलैंड लाइक क्लोज टू इक्वेटर। ये इक्वेटर के पास के आइलैंड्स हैं, तो इक्वेटोरियल का क्लाइमेट और थिक फॉरेस्ट हमको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। यहाँ पे अंडमान और निकोबार आइलैंड पे। नाउ लेट अस मूव टू द कंक्लूजन ऑफ द चैप्टर और लास्ट पैराग्राफ ऑफ द चैप्टर। A detailed account of the different physiographic unit highlights the unique feature of each region. It would, however, be clear that each region complements the other and makes the country richer in the natural resources. The northern mountains are the major source of water. And northern mountains किस चीज़ के लिए पॉपुलर है? It is a source of water and forest wealth. Northern plains are for granaries. Granaries मतलब food grains, अनाज, agriculture purpose से northern plains important है। ठीक है। दे प्रोवाइड द बेस फॉर अर्ली सिविलाइजेशन। हमारी अर्ली सिविलाइजेशन में क्या देखा हमने? एग्रीकल्चर। वो उसको उसके लिए जो है कह सकते हैं रेस्पॉन्सिबल है, या उसका जो योगदान जाता है दैट इज़ नॉर्दर्न प्लेन्स को। द प्लेट्यू इज़ ए स्टोर हाउस ऑफ मिनरल। प्लेट्यूज पे बहुत सारे मिनरल्स अवेलेबल हैं विच जो कि हमारी इंडस्ट्रीज़ के लिए जो मिनरल्स की रिक्वायरमेंट, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए सपोर्ट करते हैं प्लेट्यूज। कोस्टल रीजन और आइलैंड ग्रुप्स जो हैं फिशिंग साइट्स है, पोर्ट्स हैं, ठीक है, टूरिज्म पर्पज से इंपॉर्टेंट है। दस द डाइवर्स फिजिकल फीचर ऑफ लैंड हैज़ इमेंस फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ ऑफ डेवलपमेंट। और इन सारे फिजिकल फीचर्स की वजह से, बहुत सारे अलग अलग फिजिकल फीचर्स की वजह से जो है नियर फ्यूचर में हम बहुत सारा डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर बेटा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क मी एंड क्वेश्चन आंसर्स आई विल बी गिविंग यू।